नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं परमिला थोनन आप सबका स्वागत करती हूँ। 3 नवंबर 2025 बीते सोमवार को मेलबर्न में इंडियन कौंसल जनरल ऑफिस में कम्युनिटी टू फोरम विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका आयोजन IADF ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमानों में रहे भारत के हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया गोपाल बांगले जी। इस इवेंट का सेंटर पॉइंट ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट और CECA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर चर्चा रहा। प्रतिभागियों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में और अधिक अवसर दिलाने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए। इसमें मेलबर्न के कई बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स ने भाग लिया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की ये मीडिया रिपोर्ट। तो सर, आज का जो ECTA है, इसके जो मोटिव हैं, जो आपको कैनबरा से यहाँ खींच लाया है, इतना इम्पोर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। See, Melbourne is a very important center जी। where there is not only the large diaspora, Indian diaspora. I'm told Victoria has the largest Indian diaspora in Australia, but there is a large student community. But also, it's very important city for culture and commerce. Now, the consulates, as you know, in India, in Melbourne, the Indian Consulate General has been here for some time. It is reaching out to the community. It is organizing cultural events. But increasingly, commerce or trade is also a very important part of its responsibilities. ECTA, or the Economic Cooperation and Trade Agreement, which came into effect in about 3 years ago in December 2022, it has brought tremendous benefits to the people of both the countries. Exports in some cases have nearly increased by 40-45%, and there are a large number of Indian products, I think roughly around 100%, which have tariff-free access to the Australian market. And similarly, many Australian products now have found way to India. Avocados, for example, or macadamia nuts, just to give you a few examples. So they are benefiting, these trade is benefiting. So we held this event over here under the title Community to Commerce, which means the ideas for more trade and more prosperity and how the trade relations can benefit the people can also come from diaspora. जी सर, ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय इंडियन कम्युनिटी को सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि उससे पहले इंडियन कम्युनिटी सिर्फ करीज़ और बॉलीवुड के लिए जानी जाती थी। अक्सर जो भी गोरे अपनी स्पीच बोलते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, तो अक्सर वो बॉलीवुड को मेंशन करते हैं, हमेशा करीज़ को मेंशन करते हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट को मेंशन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को वो इतना ही लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे खुद सीरियसली नहीं लेंगे, ऑब्वियसली दूसरे लोग भी सीरियसली नहीं लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमारे जो इंडियन हाई कमीशन है या हमारे जो यहाँ पर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं। तो आप इसके ऊपर कैसे, अब क्या लग रहा है आपको, चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, इंडिया हैज़ रीच्ड द मून जी। एंड लास्ट नाइट द इंडियन वुमेन cricket team won the World Cup in one day for the first time. So congratulations, you are also. Yes. But as we speak about this, not many of your viewers would know that in all women crew boat of Indian Army is on the circumnavigation, दुनिया की परिक्रमा कर रही है और वो पर्थ में है। मैं कल पर्थ जा रहा हूँ उसके लिए। So women are doing wonders. India is doing wonders. We are the world's fastest growing economy among the large countries. We are the world's most populous nation. India is the largest democracy, the oldest democracy, and Australia and India are not only collaborating now in traditional areas, but we are collaborating in space. We are collaborating and cooperating on Antarctica. We are collaborating on defense. We are collaborating for the benefit of the people, for the benefit and peace and stability of our region. That's why India and Australia for the last 5 years have comprehensive strategic partnership. We have a tremendous friendship and cordiality among our top leadership. So I think so you are right. The era of Commonwealth, cricket and culture, or curry as it was, it helped establish cordial relations. But now we are looking at other alphabets of the English language, not merely the letter C. मुझे बहुत खुशी है सर कि इंडियन हाई कमीशन जो है अब बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है, और कम्युनिटी आइडियाज़ वर्कशॉप जो यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, बहुत ही अच्छी सोच है। और जो हमारा इंडिया का जो बिज़नेस है, जो यहाँ पर उसको प्रमोट किया जाएगा स्मॉल बिजनेसेस के थ्रू, दैट वाज अमेजिंग आइडिया। तो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। एंड आपके सारे व्यूअर्स को गुरु पर्व आ रहा है, गुरु पर्व पर लाख लाख बधाई। सारी कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव है
हम भी अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं। जी। तो आप भी कितना एक्टिव है हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम्युनिटी में जाके कवरेज कर रही है, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स टू यू टू। जी, तो ये जो आज का जो ये ICTA की जो बातचीत हो रही थी, और ये इसका जो मेन मोटिव है, ये इसके पीछे कोई आपने काफ़ी तैयारी भी कर रखी होगी, और आज जो यहाँ पर आपने जो स्पेशली इंडियन हाई कमीशन को यहाँ पे कमिश्नर को यहाँ पे बुलाया गया, तो इसके पीछे जो खास मोटिव है वो थोड़ा सा शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। 2-3 साल से उस पर कुछ चल रहा है, लेकिन क्या है कि अभी भी जितना उसको मैक्स बहुत पोटेंशियल है राइट टू रीच, तो सिर्फ लिमिटेड बिजनेस कम्युनिटी नहीं कर सकती, वो भी कितना करेंगे उनकी कैपेसिटी। And we have a wide and growing diaspora that is entrepreneurial. और इसी डायस्पोरा में से ही एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं। यही डायस्पोरा है जो भारत को समझता है, अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो क्यों ना उनको मोटिवेट किया जाए टू टू जॉइन इन दिस क्या कहते हैं इनिशिएटिव, और ज़्यादा ट्रेड बढ़े, जिससे भारत का ऑस्ट्रेलिया का सबका फायदा हो। जी, ऑफ कोर्स, नो डाउट, क्योंकि अब जो हम सिर्फ, जैसा कि सर ने भी मेंशन किया था जब मैं उनकी स्पीच सुन रही थी, एक होता है गुड्स और दूसरा सर्विसेज। तो हमारी मोस्टली जो भारत कम्युनिटी सर्विसेज के लिए जानी जाती थी, अब धीरे धीरे हम मैन्युफैक्चरिंग और आगे आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ जो मैंने आज थोड़ा सा नोट की, जो मैंने सर से भी डिस्कस किया, कि औरतों को बड़ी कम भागीदारी थी, तो उसके ऊपर कुछ बताइए। वही हमें आगे लानी है, और मुझे उसमें आपकी मदद चाहिए। ऑफ कोर्स, हम आपके साथ हैं। है ना, कि वी नीड मोर women जी, into this। हम ऐसा नहीं है कि नहीं है, there are a lot of entrepreneurs, आज भी थे कुछ female, but yeah, we definitely have to try जी, and it could be a women led development, जो भारत में मोदी जी करते हैं women led development, बिल्कुल। वैसा एक women led entrepreneurship भी हम कर सकते हैं। जी, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत फील्ड में रहती हूँ, और मैक्सिमम जब मेरा इंटरेक्शन होता है, तो ज़्यादातर इवेंट्स में बहुत सारी लेडीज़ हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत सारे लगातार बैक टू बैक मतलब बिजनेसेस में आ रही हैं, इवेंट्स करा रही हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत पैशनेट है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो इंडियन जैसे कॉन्सुलेट जनरल ऑफिसेस जो आप लोग हैं, मुझे लगता है उनको और आगे करने की अब और ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, हम करेंगे, और आप कभी भी बुलाइए। हम हमारे कम्युनिटी की तरफ से, कॉन्सुलेट का तो मैं नहीं कहता, लेकिन हमारी कम्युनिटी की तरफ से जो भी हम सहायता आपको कर पाए, उनको ट्रेन कर पाए, उनको एजुकेट, कुछ भी जो हम सपोर्ट कर पाए, हम करेंगे। जी, सबसे पहले तो आप मुझे कर दीजिएगा, सिर्फ मजाक कर रही हूँ, आप आफ्टर वो जोक। जी, ठीक है, नहीं, जी, क्योंकि आपको हमारे you're चैनल doing को भी very well। सपोर्ट है। जी ठीक है, यू आर डूइंग वेरी वेल, Thank एंड you। ऑल द बेस्ट टू योर चैनल। जी, थैंक यू सो मच जय जी, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आगे और जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात हो, और इतने अच्छे जो बेहतरीन आप कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इवेंट्स लेकर आ रहे हैं, भले ही ये छोटे हैं बट बहुत इम्पैक्टिव है, क्योंकि आप जो कम्युनिटी को यहाँ पे बुला रहे हैं, वो हमारी ऐसी कम्युनिटी है जिनका हमारी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे बहुत खुशी है, और आज के कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी थैंक यू वेरी मच फॉर जो चेंजेस आ रहे हैं बड़े लेवल पर बिजनेसेस को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहोगे? जैसा कि पीयूष गोयल जी जब यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमें इसे ग्रो करना है अप टू 100 बिलियन। तो उसको ग्रो करने के लिए हमें सभी को प्रयास करना पड़ेगा। हाँ जी, और उसको अचीव करने के लिए इस तरह के इवेंट बहुत ज़रूरी हैं, जिससे हमें ये क्लैरिटी आए कि हम भारत के साथ कैसे कनेक्ट करें। राइट, बहुत ज़्यादा फॉग है कि हाउ टू कनेक्ट, और किस किस एरिया में कनेक्ट। तो इस तरह के इवेंट से हमको काफ़ी अच्छा इसके बारे में पता चलता है। तो ये बहुत आवश्यक इवेंट है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप कुछ बोलेंगे? इंडिया जो है पास्ट में हाँ, मेजर फोर्स इसीलिए था इकोनॉमी की वर्ल्ड की, क्योंकि सबके साथ ट्रेड करते थे। आई थिंक हम लोग भूल गए हैं कि वी कैन ट्रेड विद एनीवन एक्चुअली, और हम सबसे बड़े ट्रेडर्स थे। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से एटलीस्ट ये होने लगा है कि हम ट्रेड करने की सोचेंगे और करेंगे इंडिया के साथ, जो कि हमारे रूट्स हैं। एंड आई थिंक वेरी गुड सोर्स है जो हाई कमिश्नर जी ने बोला, ही वाज वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स, एंड आई थिंक वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग विद इंडिया। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज हमारे आंसर हुए हैं, जी, जैसे हम जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उस जी, बारे जी, में काफ़ी अच्छा जी, जानकारी। बहुत बढ़िया। इस उम्मीद के साथ कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापार रिलेशंस है, संबंध है, वो और आगे मजबूत होंगे, और जो हमारे यहाँ के इंडियन बिजनेस ऑनर्स हैं, उनको भी बहुत आगे, और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि भारत में भी उनको भी अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस तरह की मीटिंग्स और कार्यक्रमों से। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।
IADF ऑर्गेनाइजेशन की भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को बिजनेस के माध्यम से मजबूत करने की ये कोशिश प्रशंसनीय है। P24 न्यूज मीडिया चैनल IADF ऑर्गेनाइजेशन को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।